आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। दोपहर के 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 5वीं समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन की अर्जी पर सीनियर वकील राजू धवन ने अपने दलाइल पेश किए। PC के सदर सजाद गनी लोन पार्टी अरकान मोहम्मद अशरफ मीर, अब्दुल गनी वकील, बशीर अहमद डार और तर्जमान अदनान मीर के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। In the case of state of Jammu and Kashmir, I also submitted that it was only instrument of accession which was executed between two entities, the Dominion of India and the state of Jammu and Kashmir. Making that as the base, that would be the relationship between the Dominion of India and this entity. Subsequent to this, when the residuary sovereignty vested in the king, further documents were to be executed relating to this particular state. The Maharaja issues the proclamation of 1948. In that proclamation, he says that we need to have a national assembly to frame a constitution. This is the genesis of framing of the constitution of Jammu and Kashmir is rooted in the nature of instrument of accession as well as the proclamation of 1948. That's where we arrive the source as to why second constitution for the state. Then the third thing is that after these declarations are made and no further documents are executed, but at the same time the Constitution of India was being made. So the problem and the issue, the question before them was what is to be done. This is what I said yesterday. And I also submitted that meanwhile, some more developments had taken place, which had an external dimension, which also shaped and influenced the Constitution Assembly of the Union of India. Now, this is the whole scenario which existed before Article 370 was adopted. And I also submitted that the residual power came to be subsumed by Article 370. My Lord's observation was what happened to instrument of accession. But subsequently, when you agree to a constitution, you had acceded to the Dominion of India, maybe partly only, may not be fully, you had not integrated, I would say, because you had not executed merger agreement. So the Article 370 subsumed this remaining power, whether we call it sovereign power, residuary power, but it retained the power with itself. And therefore, next question would be the exercise of this power. Whereas the power is there in terms of the instrument of accession,
Now in Article 370, how it was to be exercised. I will make a digression here. Perhaps at that point of time, it was felt that since we don't have a Maharaja any longer, we don't have any other authority to do it, who would go in almost like a substitute for merger agreement? If complete integration had to take place, how could this be brought about? A mechanism is evolved in 370 that will be entirely for the people of Jammu and Kashmir to integrate with India. Whereas they have done it with accession, they have acceded to Union of India, but to integrate it completely, as I said, shaking hands and embracing. The embracement was left to the people of Jammu and Kashmir, but in accordance with the mechanism and the procedure prescribed by Article 370. इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि यह मामला अभी अदालत उज़्मा में है और उन्हें उम्मीद है कि यहां से जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ सज्जाद गनी लोन साहब मौजूद हैं। पूरी टीम के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सर, आज आप आ गए हैं, आपका भी केस है, क्या है उम्मीदें और कौन आपकी तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं? हमारी तरफ से जो आर्गूमेंट कर रहे हैं राजीव दबन साहब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद आए हुए हैं कि यहाँ से जस्टिस मिलेगी। जो इनजस्टिस हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इंशाल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका रिवर्सल होगा। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि जिस तरह से कल केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा कि 370 को भूल जाइए, पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने कहा, हालांकि पूरा मामला अभी यहाँ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद भी जैसे उन्होंने कहा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, ऑफ कोर्स इट इज़ द अल्टीमेट सीट ऑफ जस्टिस। सो बाकी कोई क्या बोले उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, लगातार ये बात कही जा रही है, कल एलजी साहब ने भी परसों ये कहा था कि 370 और 35A अब तो पुरानी बातें हो गई हैं, कुछ नया कीजिए। देखिए, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट सुप्रीम कोर्ट के सामने इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स जो हैं, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनली एंड इन अ फिजिकल सेंस आर वेरी वेरी स्मॉल एंड टाइनी। तो उनकी कोई भी बात जो मतलब शायद कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट ना हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सब तो यहाँ कोर्ट में ही होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 35A और 370 बहाल हो कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बयान आ जाते हैं, उस बयान से क्या कश्मीर की आवाम को या आप लोगों को कुछ हौसले में कमी आती है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, सब चीज़ें कहीं मैनिपुलेट तो नहीं करने की कोशिश की जा रही? देखिए, पत्थर की लकीर कोई चीज़ नहीं होती है, देयर इज़ नथिंग विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। अब किसी के कहने से हो सकता है लोगों को होता हो भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इनकी इट्स दैट्स मोर ऑफ पॉलिटिक्स एंड लेस ऑफ लॉ। वी आर हियर बिकॉज ऑफ द लॉ, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ जो ये हाईएस्ट सीट ऑफ जस्टिस है, वी आर हियर बिकॉज ऑफ लॉ, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल पार्लियामेंट में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तमाम चीज़ों का पढ़ना चाहते। अभी तो हम कोर्ट के मामले में आए हैं, तो चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी जिस तरह से कोर्ट में एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के लीडरान का आना जारी है, बदस्तूर जारी है, इससे एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली। इधर रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि अदालत उज़्मा में दफ़ा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जिस तरह से समाज चल रही है और वकला सही तरीके से अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, उसकी वजह से भाजपा लीडरान बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और गुमराहकुन बयानबाजी कर रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। देखिए, जिस तरीके से यहाँ समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो दलाइल पेश किए जा रहे हैं, और आज आप जैसे जानते हैं कि ये सारा ऑनलाइन है, लोग देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या मारूजात हैं, क्या बहस हो रही है, उसका सवाल क्या पूछे जा रहे हैं और जवाब क्या दिए जा रहे हैं। तो इससे बुखलाहट सी आ गई है इनकी जो हिज़्ब इक़्तिदार है, तो उन्होंने ऐसा माहौल एक पैदा हुआ, ऐसी उम्मीदें जग गई है लोगों में, ऐसी तवक़ात हैं कि जो इन्होंने अपने कुछ कायदीन को उतारा था मायूसी की खेती करने के लिए, ये तासुर देने के लिए, लोगों को कहने के लिए कुछ होने वाला नहीं, जो गया वो तो गया।
तो वो भी आज जम्मू कश्मीर में इस पर नज़र रखे हुए हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं। ऐसे सियासी लीडर और सियासी क़ुव्वतें भी आज जो हमारी जो कहते हैं कि आलोचना करती थी कि ये 370 का मामला क्यों उन्होंने ऐसे रखा है, ये क्यों इसको लाइव रखा है, तो वो आज भी मजबूर हो गई हैं क्योंकि एक उम्मीद पैदा हो गई। इसी से बोखराहट है। अब रही जो कल पार्लियामेंट में बात हुई, देखिए वो सरीहन तौहीन अदालत की सरहदों को छूती है। लाजिम नहीं था कि एक मिनिस्टर ये जानते हुए कि अदालत में जो मुल्क है, मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत में 370 और 335 से और विभाजन के हवाले से एक बहस हो रही है, और बहस सिर्फ एक आध घंटे की नहीं हो रही है, ये बहस महित होगी मुझे लगता है कई हफ्तों पर, और वो इसी तस्दीक करते हुए कह रही है कि ये नहीं होगा, ये वापस नहीं आएगा। तो सरीहन ये बिल्कुल तौहीन है जो अदालत आलिया हमारा अदालत उज़्मा है उसकी। दूसरी बात यह है जो नियम है, जो हमारे जो कायदा कानून है हमारा पार्लियामेंट चलाने का, लोकसभा चलाने का जो रूल्स है, उसमें 352A बिल्कुल ये ममानत करता है कि कोई भी मेंबर किसी भी डिबेट के दौरान, किसी भी बहस के दौरान कत्तन उस मामले पर टिप्पणी तबसरा ना करे जो मामला रवा हो सुप्रीम कोर्ट में, जो ज़ेर बहस हो, ज़ेर समात हो। तो उस तरीके से भी उनका जो है जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बिल्कुल जिस तरह से कल ये बातें कही गई हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला है और बदस्तूर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखा रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहिए था उनका सही था? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल उनको इंतजार करें, उनके अपने जो वकील हैं, जो अटॉर्नी जनरल है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कोई हक नहीं बनता मिनिस्टर साहिबा का कि वो ऐसा बयान दे और तौहीन करे सुप्रीम कोर्ट की और ये कहे कि ये नहीं होने वाला है। तो उसका मतलब है उन्होंने कब्र से वक्त फैसला कर दिया अपनी जगह पर, वो खुद ही कोर्ट बन गई है पहले ही, और कोर्ट से भी आगे बन रही है। कोर्ट की समात किए बिना ही वो कोर्ट एक फैसला सादिर कर रही है। तो मुझे लगता है कि उनको इसे माफ कर। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं कि वहाँ शादियाँ नहीं होती थी, वहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी। आप देखिए पहले दिन से ताबिज़ जी, पहले दिन से 5 अगस्त 2019 से ही एक बयानिया बनाया गया, मार्केट किया गया 5 अगस्त के फैसलों को मिसट्रुथ्स पर। अब ये कहना है कि वहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही थी, बिल्कुल गलत है। 1928 में कानून बना था महाराजा ने, और हमारा जो आइन था जम्मू कश्मीर का आइन, वो वाहिद आइन है बरसगीर में जिसमें कहा गया राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड। बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जितनी हमारी रजीम थी, लीगल रजीम थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था सारी मुल्क में। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ के कानून मनसूख करके यहाँ के कानून लाए और ये कहा कि ये कानून वहाँ थे ही नहीं। अब देखिए जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 1997 का बना हुआ है, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वुमेन कमीशन है, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मार्केट करने के लिए जो 5 अगस्त के फैसले थे उनको मार्केट कर ये सारा बयानिया बनाया जो बिल्कुल झूठ और लघु है। अभी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, इस दौरान क्या आप अपनी कोई बात रख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री, एक सेंट्रल मिनिस्टर इस तरह की बात कह रही हैं, क्या कोई लेटर दे सकते हैं आप? नहीं, मुमकिन वो देखेंगे उसका, लेकिन कल डॉक्टर साहब ने फ़ौरन ही कहा, जब डॉक्टर साहब बहस में शिरकत के लिए उठे तो उन्होंने पहले ये कहा कि ये सारी गलत बयानी की जा रही है 1928 में, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में ऐसा कानून था ही नहीं। और हम ये क्लेम नहीं करते कि अवामी हुकूमत ने बनाया, महाराजा ने बनाया, क्योंकि उनका भी एक फॉरवर्ड लुकिंग था, उनका भी आप जानते हैं कि उनका भी एक रिफॉर्मेटिव था तरीका, क्योंकि उन्होंने एक आइन भी बनाया था। तो उन्होंने एक सारे कवानीन बनाए थे और उन कवानीन को इन्होंने 5 अगस्त के बाद मनसूख किया। ये सीरियल नंबर 62 या 63 पर ये कानून उसका जिक्र होगा जो फिरिस्त है। क्या क्या कहा, 1000 कानून हमने वहाँ लगाए जो कि कानून पहले से ही मौजूद थी। अब फ़र्क ये था हमारा जैसे हमारा रणबीर पेनल कोड है 1861 में बना हुआ है, तो यहाँ पर इंडियन पेनल कोड था। अब वहाँ रणबीर पेनल कोड मनसूख करके फिर कहते हैं ये लगाएंगे और एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं था। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से बहस हो रही है, जिस तरीके के दलाइल दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ से सवालात और यहाँ से सवालात के जवाब हैं, यहाँ से वजाहतें दी जाए, उससे बौखला गए हैं। उससे इनको कहीं ना कहीं पर यह है कि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर क्या जो कल सेंट्रल मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में बोली है, क्या ये चीज़ कोर्ट के सामने रखी जा सकती है कि ये पहले ही जज बन गए आपका फैसला आने से पहले? बिल्कुल रखी जा सकती है। कोर्ट की तवज्जो, जो अदालत की तवज्जो इस तरह मबजूल की जा सकती है। और इनको मुझे लगता है कि पहले तो इनको खुद ही विड्रॉ करना चाहिए, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा तबसरा एक जो रवा मामला है जो इसे। इधर भाजपा लीडर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि अगरचे दफ़ा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चाहिए कि इस पर बात करना
मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जमात ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया और उन्हें उनके हुकूक से भी महरूम रखा है। देखिए, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है हमें उसका ऑनर करना चाहिए और उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक 370 या 35 से या ऐसी चीज़ों की बात है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला को अपने गिरेवा में नज़र डालनी चाहिए। जो इंदिरा शेख हेकार्ड है, जब वो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करा 75 में, उन्होंने उसको उसी वक्त दफना दिया था। और ये सिर्फ लोगों को, वहाँ के मासूम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। 370 हिस्ट्री का हिस्सा है और ये सिर्फ और सिर्फ नून के नुक्ते निकालते हैं। यहाँ तक ताल्लुक़ है इनका डेवलपमेंट का, जहाँ पार्लियामेंट में बाबेला करने का, इन्हीं ने फ़ारूक अब्दुल्ला आज कश्मीर में जो कत्ल व गारत हुई है, जो नौजवान बच्चे मरे हैं, जिन माओं के बच्चे मरे हैं, वो उसका फ़ारूक अब्दुल्ला और इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन्होंने रिग करा, वहाँ रिगिंग करी। इन्होंने यहाँ इतना बड़ा बाबेला करा कि इन्होंने कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। सिर्फ ये एक्सप्लॉइट करते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्ट्रोक खेलते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि आज जो ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। वो वक्त चला गया। आप कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू में क्या बोलते हैं। सवाल तो ये है कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कल ये भी कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहता था, मुझे लाने नहीं दिया गया, मुझे रोका गया। कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए, सरकार बताए कि कब वापस आएंगे, अब तो सेंटर में आपकी सरकार है, बताना चाहिए। तमाम सवाल उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर के सेंटर गवर्नमेंट पर खड़े कर दिए। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकारें रही है, ये कभी सीरियस होंगे। जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, खासकर उनमें कश्मीरी पंडित हैं, कि उनको कश्मीर में रिहेबिलिटेट करा जाए, उनको उनकी जायदाद का हिफाजत करी जाए, उनके हकूक़ की हिफाजत, दोबारा उसको रिहेबिलिटेट कराए। मुझे नहीं लगता ये कभी सीरियस हो। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सीरियस है और हम उनके लिए छोटे छोटे जो उनके इश्यूज़ हैं, वहाँ फ्लैट है, उनको अलग से वो देना है, सुविधा देना है। उनकी जो जायदादें थी, उनका जितने भी, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कितनी देर बाद अपने जो पवित्र स्थान है, ज़्यादातर उनमें पूजाएँ करी हैं। आपने कश्मीर के हालात को देखा होगा कि अदर रिलीजन प्रोसेशंस, जो मज़हब के प्रोसेशंस हैं मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के, वो भी निकले हैं। वहाँ G20 हुआ है। हम एक बहुत बड़ा उनके लिए बिल लेके आए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, जो इसमें लोकसभा में पेश हुआ है। हम उनके लिए हर वक्त देश का वज़ीर आज़म, देश का वज़ीर दाखिला और वहाँ का LG प्रशासन हर वक्त उनके लिए चिंता करते हैं। हमारे लिए कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी दूसरा हो, डोगरा हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, हम सब बराबर हैं। ये हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ना कब कुछ देंगे, ना कभी देने वाले हैं। अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए ये कुछ भी अमेंड कर लेते हैं। इन्होंने स्टेट के एक्सचेकर को लूट खसूट करी है। ये लग रहा है कि जब सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है तो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, आप इलेक्शन किस को मानते हैं? पार्लियामेंट के इलेक्शन को आप इलेक्शन नहीं मानते? नहीं, तो फिर स्टेट का इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? जब देश के वज़ीर दाखिला ने स्टेट के फ्लोर पे कहा है कि हम स्टेट भी देंगे और इलेक्शन भी करवाएंगे, हाँ, उसके लिए प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए डिलिमिटेशन हुआ है। कह रहा है अपोजिशन लीडर, डिलिमिटेशन होती है, उसके लिए वोटर लिस्ट का वो करना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी कॉल करेगा, हम उसके लिए रेडी है। अपोजिशन लीडर ये कह रहा है कि आप लोग डर रहे हैं अब चुनाव कराने से, क्योंकि बीजेपी वहाँ चुनाव हार जाएगी। पोजीशन क्या कहती है, मैं उसका हमें वो नहीं है, उनका भी राइट है वो क्या कहते हैं, वो तो वही कहेंगे, हम पे तो फूल तो फेंकेंगे नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, डेमोक्रेसी पे बिलीव करती हैं, इलेक्शन पे बिलीव करते हैं। हम वहाँ एज एंड व्हेन, हम वहाँ काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं हालात को ठीक करने में। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे ही वहाँ से कॉल आएंगे हम रेडी हैं इलेक्शन। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल पार्लियामेंट में कहा कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान से बात करो, हालात ठीक करो। देखिए, फारूक अब्दुल्ला को ये कोई राइट नहीं है क्या वो हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल हम किस देश से बात करते हैं या किससे नहीं, वो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। फारूक अब्दुल्ला इज़ नॉट कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है,
वो एक सिर्फ एमपी हैं और यहाँ बहुत सारे एमपीस हैं, ये उसका दायित्व ही नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी साफ ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ एक एमपी हैं और उनको इन सारे मसलों से दूर रहना ही बेहतर है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग गढूल इलाके में महासर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक ग्रेनेड धमाके में फौजी एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता शब फोर्सेस की एक तलाशी पार्टी ने अथलान गढूल गांव को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने तलाशी शुरू की तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने उन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 2 आम शहरी और एक फौजी एहलकार को मामूली चोटें आई। हमले के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत मुस्तकम बताई है। इलाके में महासरत तंग करके बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो कि आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। महकमे एग्रीकल्चर की एनफोर्समेंट विंग और डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने सिडको इंडस्ट्रियल एरिया का अचानक छापा मारा और प्ले बोर्ड तैयार करने वाली 2 यूनिटों से गैर कानूनी तौर पर 37 क्विंटल गैर मयारी यूरिया खाद जब्त की है। गैर मयारी खाद को गैर कानूनी तौर पर अपने इस्तेमाल के लिए इन यूनिटों में रखा गया था। याद रहे कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर मुत्तलका महकमे की एनफोर्समेंट विंग ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हमरा छापा मारा। ताहम इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने एक इंटरनल विजिलेंस स्क्वाड क्रिएट किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पिछले 2 साल से कुछ इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ लोग जो हैं ये इस बिज़नेस में शामिल हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों को सब्सिडी पे खाद मिलता है, नीम कोटेड यूरिया, जो कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स या हार्टिकल्चर क्रॉप्स में जिसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, चाहे वो कंपनीज़ के होलसेल लाइसेंस होल्डर्स हों या रिटेलर्स हों और इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जो कि आम किसान जो 7.5 लाख फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ कश्मीर की हैं, जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी सेम लसीपुरा में एक वैसा वाक़या आया कि मेरे पास एक स्पेसिफिक इनपुट के लिहाज से मैं आया और हमने यहाँ से भारी मिकदार में यूरिया को पकड़ा। और मैं आज ही जिन रिटेलर से, जिन होलसेलर से ये खाद आया है उसका लाइसेंस भी कैंसिल करूंगा और गवर्नमेंट को लिखूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखूंगा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप करूंगा कि अगर उनको इंडस्ट्री चलानी है वो चलाएं, हम उनके साथ हैं, लेकिन किसान का गला नहीं घोंटे। यही हमारा मुद्दा है। और कोई भी आदमी, कोई कितना पावरफुल हो, कुछ भी कर ले, जान की बाजी देनी पड़े दे देंगे, लेकिन वैसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों से खाद ला के किसानों को यहाँ सब्सिडी पे खाद देती है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ गंदे अनासर समाज में हैं कि जो कि अभी इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और जिसका सबूत जो है ये आपके सामने है। ये 2 जगहों के ऊपर हम लोगों ने ये इस कंसाइनमेंट को पकड़ा है और मैं आज ही अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इसके मसले में इन्फॉर्म भी करूँगा कि हमने क्या क्या किया है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ इश्यू को भी टेकअप किया जाएगा। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन मसलों में हमारा पूरा ताउन। ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने ज़िला में मकामी मसाइल और ख्वाहिशात को चैलेंज करने वाले रोज़गार के फ़ायदेमंद मौक़े और इख्तिराहात को फ़रोग़ देने के लिए एक काबिल अमल माहौल पैदा करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। डोडा हब, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष महाजन ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा में किया, ताकि ज़िला के नौजवान और उभरते हुए कारोबारी अफराद में इख्तिराह को फ़रोग़ देने के लिए एक काम की जगह फराहम की जा सके, जिसमें वाईफाई समेत तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है। इब्तिदाई तौर पर 1 साल की मुद्दत के लिए मुफ्त इंटरनेट, गैजेट्स, दफ्तरी रिहाइश और फर्नीचर डोडा हब को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दस्तयाब कराया जाएगा। हमारी एक कोशिश है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की। हमारे जो बच्चे कॉलेज से पढ़ के, यूनिवर्सिटी करके, या कुछ बच्चे जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने। तो बच्चों को इनिशियली बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। मैंने इदरिस से जब बात की तो हमने ये डिसाइड किया कि वी विल प्रोवाइड देम फ्री वर्किंग स्पेस, इंटरनेट
कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, ताकि वो पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में, उसका फ़ायदा उठा सके, कुछ कर पाए और समाज के लिए, पूरे देश के लिए, यूटी के लिए एक एग्जाम्पल बन पाए। लगभग कितनी स्पेस यहाँ पे रखी हुई है? हमारे पास लगभग इनिशियली 40 से 50 बच्चे बैठने की जगह है। 10 से 12 हमारे पास कंप्यूटर्स हैं विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, अगर ये जगह बढ़ती जाएगी तो हम स्पेस को भी बढ़ा लेंगे। मॉनिटरिंग वगैरह किस तरह से होगी? मॉनिटरिंग के लिए बहुत कम रोल रहेगा। रोल जो है मेजरली वो इनोवेशन की तरफ रहेगा। हम चाहते हैं बच्चे आएँ, अपने आइडियाज़ डिस्कस करें, उनको बिज़नेस शेप दें। हम इसमें वीकली या फोर्टनाइटली कोशिश करेंगे बैंक से लोग आएँ, कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आएँ, ईडीआई के लोग इसमें मदद करें, एम्प्लॉयमेंट लोगों को बुलाए, इंडस्ट्रीज़ अगर छोटी या बड़ी जिनको ज़रूरत है वो इनसे मिलें, ताकि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो बच्चों के लिए, वो बेहतर काम कर सकें, नशा जो आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी है उससे दूर हट सके। जो भी लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, बच्चे उसमें काम करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेस होगा। श्रीनगर में आज कांग्रेस लीडरान ने पार्टी दफ्तर में बेरोजगारी की शरह में इजाफे, अशिया ज़रूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के हवाले से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत गरीब आवाम के दुखों से लाइलम है। अशिया ज़रूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस लोगों को रोज़मर्रा का जरिए माश चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।